Hello everyone. I, Faizia Khidwai, welcome you all to Balaji online classes. Today I am here to explain chapter number 2 Parliamentary Government of class 8th Political Science. Now, the democratic government is of two types. First is the parliamentary, second is the presidential. In parliamentary form of government, Prime Minister is the real head of the government and also the leader of the majority party, and his government stays in power till he enjoys the support of the majority. Also, the president is only the nominal head of the country. Then in the presidential form of government, president is the real head of the country who is elected by the people and is not accountable to the legislature. Then the second topic comes that why we chose parliamentary democracy. Now what happened after independence? Our constitution makers realized that there is a problem in governing such a vast and diverse country with a huge population. And in order to regulate a proper administration, they adopted this form of government. Also, they were familiar with the British parliamentary system. Then, apart of these reasons, there are also certain other reasons. The first was that the flexibility of this government means this government can be changed after a fixed period of time. And second was that this government is accountable to the people and to the legislature. Also, this government involves public opinion, means this government is directly elected by the people. Then it also ensures efficiency because of the cooperation between the legislature and the executive. Then comes the topic, the parliament. Now the parliament at the central level consists of two houses. First is Lok Sabha, which is also called as lower house, and second is Rajya Sabha, the upper house. Lok Sabha is also called as the house of the people. Why? Because the members of this house is elected by the people. Lok Sabha has a maximum of 550 members, out of which 530 are elected from different states of India and remaining 20 are from different union territories of the country. Also, the president has the power to nominate 2 members from Anglo-Indian community. Now, any person who is a citizen of India and at least 25 years of age can contest the Lok Sabha elections and become its member. Lok Sabha is elected for a period of 5 years. Lok Sabha जनरली 5 सालों के लिए इलेक्ट की जाती है, बट ये उससे पहले भी डिसॉल्व हो सकती है इन केस अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया. मीन्स अगर ये पाया गया कि जो फंक्शनिंग है इसकी वो एप्रोप्रिएट नहीं है, मीन्स लोगों ने ये देखा कि जो ये पर्टिकुलर बॉडी है, नाउ दिस बॉडी इज नॉट केपेबल ऑफ holding this position. In such cases, the Lok Sabha gets dissolved. But in emergency times, the tenure of Lok Sabha can be extended also. Then the Lok Sabha is headed by a speaker and it also has a deputy speaker that is elected among its members. The speaker of Lok Sabha presides over the meeting and also maintains the discipline in the house. एंड जो लोकसभा का ये जो स्पीकर होता है, ये स्पीकर बनने के बाद ये किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर नहीं हो सकता है. वाई? बिकॉज इससे क्या होगा, एक फेयरली वो वर्क करेगा, वो उसमें पार्शियलिटी या बायसनेस नहीं आएगी. देन अगर इन केस वो एब्सेंट होता है, देन इन हिज एब्सेंस द डिप्टी स्पीकर टेक्स हिज चार्ज. Then the next house is the Rajya Sabha. Now, Rajya Sabha consists of 250 members, out of which 238 are elected from different states and the remaining 12 are nominated by the president. Also, the minimum age to contest for Rajya Sabha is 30 years and members
of Raj Sabha has a tenure of 6 years. Means 6 years तक इसका मेंबर जो है वहाँ पे वर्क कर सकता है. Also जो राज्यसभा होती है is a permanent body. Means this body can never be dissolved. However होता क्या है, after 2 years जो 1/3 जो है इसके members they are elected again. Why? Because कुछ members जो होते हैं उनका tenure complete हो गया होता है और वो उनका retirement हो जाता है. That's why. Then the Vice President of India becomes the chairman of the Rajya Sabha by the virtue of his office, and the deputy chairman is chosen by the members of the house. जो वाइस प्रेसिडेंट होता है इंडिया का वो राज्यसभा का चेयरमैन बनता है, क्योंकि राज्यसभा हाउस है उसका जो चेयरमैन वाइस प्रेसिडेंट जो वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट होता है वो ऑटोमेटिकली जो है वो चेयरपर्सन बन जाता है राज्यसभा का. Then comes the powers and functions of the parliament. Parliament is supreme law-making body. Basically पार्लियामेंट का काम क्या होता है, बिल इंट्रोड्यूस होते हैं पार्लियामेंट में एंड वो लेटर ऑन जब पास हो जाते हैं तो वो लॉ बन जाते हैं. सो द पार्लियामेंट passes 2 kinds of bill. First is the ordinary bill and second is the money bill. अब ये बिल होता क्या है, जैसे कोई भी गवर्नमेंट लॉ बनाना चाहती है तो वो उसकी एक प्रपोजल तैयार करती है और ये जो प्रपोजल होता है इसे हम बिल कहते हैं. अब ये बिल जब पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस होता है तो इसकी सर्टेन स्टेजेस होती हैं. नाउ व्हाट हैपन्स, जब जो मनी बिल होता है वो दैट बिल कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड इन दी लोकसभा. वो लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है एंड पास होता है. हाउएवर 14 days are given to the Rajya Sabha to pass that bill, and in case Rajya Sabha fails to do so, then that bill is considered to be passed. In case of ordinary bill, an ordinary bill can be introduced in both the houses and bill has to be passed by both the houses. Every bill goes through these 3 readings. जो 3 stages होती हैं जब बिल पार्लियामेंट में आता है तो जो फर्स्ट स्टेज होती है उसमें बिल का सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया जाता है, उसका टाइटल रिवील किया जाता है. बट इन सेकेंड रीडिंग उसका क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कशन होता है एंड इन थर्ड रीडिंग में वोटिंग होती है जिसमें अगर मेजॉरिटी हो जाती है तो दैट पर्टिकुलर बिल इज पास्ड टू द अदर हाउस. और वही सेम प्रोसेस दूसरे हाउस में भी होता है एंड अगर दूसरे हाउस से भी बिल पास हो जाता है तो नाउ इट गोज टू द प्रेसिडेंट फॉर हिज अप्रूवल. और when president signs this bill, that bill becomes the law. So इस तरह से ये पूरा प्रोसेस है पार्लियामेंट का. Then the composition of the executive. अब आता है जो हमारी कंट्री का नॉमिनल हेड है, that is the president. तो president is basically elected by the electoral college comprising of the members of Lok Sabha, Rajya Sabha and the members of legislative assemblies of the state. And president, in order to become a president, one has to have the same qualifications as to become the member of Lok Sabha, but he must be of 35 years of age. Also, if he is not working according to the provisions of the constitution, then he can also be removed from his office, and this process is called as impeachment. प्रेसिडेंट अगर अकॉर्डिंगली वर्क नहीं कर रहा है तो उसे हम रिमूव भी कर सकते हैं और इस प्रोसेस को हम कहते हैं इम्पीचमेंट. देन वी विल डिस्कस द पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट. पावर ऑफ प्रेसिडेंट जो हैं वो डिवाइडेड हैं कैटेगरीज में. द फर्स्ट कैटेगरी इज द एग्जीक्यूटिव. प्रेसिडेंट सारे इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स करता है, ठीक है. प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट करता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का करता है, गवर्नर्स, चीफ जस्टिस, जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इलेक्शन कमिश्नर्स, अटॉर्नी जनरल एंड ऑल्सो द एम्बेसडर्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज. He is the supreme commander of the defense forces and he also signs treaties and declare war according to the situation.
Then comes the legislative powers. Legislative powers क्या होते हैं? That he address the joint session of both the houses, that is लोक सभा and राज्य सभा. Also कोई भी बिल पास नहीं हो सकता है without the signature of the president. And in case अगर पार्लियामेंट कभी सेशन में नहीं है, तो प्रेसिडेंट कुछ लॉज बनाता है. Those laws are called as ordinance and these become effective immediately. Then come the judicial powers. Judicial powers वो होते हैं कि क्या होता है कि जो कॉन्विक्ट्स होते हैं वो कभी कभी अपने मर्सी अपील्स प्रेजेंट करते हैं प्रेसिडेंट के पास. एंड प्रेसिडेंट के पास की पावर होती है टू either reduce their punishment or grant them pardon. Then comes the emergency powers. Emergency powers क्या होती है? क्या होता है कि कभी कभी हमारी जैसे कंट्री है उस पर किसी तरह का कोई एक्सटर्नल या इंटरनल आर्म्ड रेबिलियन का खतरा होता है, मीन्स कोई अटैक होने वाला होता है. एंड दिस सिचुएशन इज डिक्लेयर्ड एज द नेशनल इमरजेंसी. सेकेंड क्या होता है कि अगर गवर्नमेंट डिसॉल्व हो गई, देन क्या होता है कि प्रेसिडेंट रूल आ जाता है उस पर्टिकुलर स्टेट में. देन also the state assembly can be suspended and the functions of executive pass into the hands of the president. in India में क्या होता है, जो फाइनेंशियल इमरजेंसी होती है, अगर कोई भी फाइनेंशियल जैसे आजकल है बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन, जो मोस्टली जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो कंट्रीज की गिर रही है. इंडिया की भी पोजीशन, इकोनॉमिक पोजीशन इस टाइम पे बहुत ख़राब हो चुकी है. तो ऐसे में फाइनेंशियल इमरजेंसी लगने के चांसेस होते हैं, और ये फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाने का पावर होता है प्रेसिडेंट के पास. लेकिन ऑल दीज पावर्स जो भी मेंशन किए हमने, ऑल दीज पावर्स आर फॉर्मल. Why? Because they are exercised by the president only on the advice of the council of ministers, which is headed by the prime minister. प्रेसिडेंट ये सारे डिसीजन अकेले नहीं ले सकता है. ये सारे डिसीजंस वो काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर्स की एडवाइस से ले सकता है, और काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर्स का हेड कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर. देन द सेकेंड वन इज प्राइम मिनिस्टर. Now, Prime Minister is the real head of the state. He is the leader of the majority party, and on his recommendations, the President appoints the Council of Ministers. Also, Prime Minister has the power to dismiss or reshuffle the members of the Council of Ministers in case उन्हें ऐसा लगा कि वो properly function नहीं कर रहे हैं. ये और प्राइम मिनिस्टर का काम होता है प्रॉपरली देखना कि कैसे कौन से डिपार्टमेंट की कैसी फंक्शनिंग हो रही है, कौन सा मिनिस्टर किस डिपार्टमेंट पे कैसे परफॉर्म कर रहा है. बेसिकली ये सुपरविजन का काम जो होता है दैट इज डन बाय द प्राइम मिनिस्टर. एंड अगर इफ ही डाइज और रिजाइंस, अगर प्राइम मिनिस्टर मतलब इन केस की डेथ हो रही है या वो रिजाइन कर रहा है, तो जो होल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती है, ऑल दोज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैज टू रिजाइन. एंड ऐसे में क्या होता है, जो गवर्नमेंट होती है वो गिर जाती है. देन कम्स द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कंसिस्ट ऑफ 3 कैटेगरीज ऑफ मिनिस्टर्स. फर्स्ट इज द कैबिनेट मिनिस्टर्स, जिनकी हाईएस्ट रैंक होती है. कैबिनेट मिनिस्टर्स बेसिकली जो होते हैं एक हाईएस्ट रैंक होती है और एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के इंचार्ज होते हैं इंडिपेंडेंटली. And they are also assisted by the ministers of state and deputy ministers. Ministers of state जो होते हैं वो सेकेंड पोजीशन होल्ड करते हैं. मिनिस्टर ऑफ स्टेट या तो असिस्ट करते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स को, या तो इंडिपेंडेंटली अपना चार्ज संभालते हैं. उसके बाद जो लोएस्ट होते हैं इस रैंक में वो होते हैं डिप्टी मिनिस्टर्स. डिप्टी मिनिस्टर्स का बेसिकली यही काम होता है दैट दे असिस्ट द कैबिनेट मिनिस्टर्स एंड द मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट. एंड हर मिनिस्टर जो होता है उसका अपना एक डिपार्टमेंट होता है जिसे हम मिनिस्ट्री कहते हैं. एंड दैट मिनिस्टर मस्ट लुक आफ्टर हिज मिनिस्ट्री प्रॉपरली. देन कम्स द प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी. नाउ व्हाट इज दिस? व्हाट हैपन्स, ये क्या होता है, जो हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं
वो एक प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी पे वर्क करते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि अगर किसी पर्टिकुलर एक मेंबर ने कोई भी ऐसा काम किया जो गलत हुआ या उसके अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया, तो जो एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसको रिजाइन करना पड़ेगा। एंड इससे क्या होगा, इससे अल्टीमेटली जो गवर्नमेंट होगी उस वो क्या होगी, दैट लेट्स द डाउनफॉल ऑफ द गवर्नमेंट। तो ये ऐसा नहीं हो सकता कि अगर एक मिनिस्टर ने कुछ गलत किया तो सारे मिनिस्टर्स ये कह के बच जाएं कि नहीं इसकी गलती है मेरी नहीं। सो यहाँ पे ये नहीं होता है, यहाँ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स अगर एक ने गलत किया तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी सब पर आती है और सबको रिजाइन करना पड़ता है। देन कम्स द लास्ट टॉपिक, दैट इज व्हाई अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब अभी हमने ये चीज़ डिस्कस की है एज अर्लियर कि हमने क्यों पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट चूज़ की। हमने पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट इसलिए चूज़ की फर्स्ट ऑफ ऑल कि वी वर अवेयर ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम एंड ऑल्सो इतनी वास्ट कंट्री को, एक डाइवर्स कंट्री जहाँ डिफरेंट कल्चर डिफरेंट ट्रेडिशंस के लोग रहते हैं, जिनकी डिफरेंट बिलीव्स हैं, डिफरेंट उनके रिलीजन्स हैं, उनको साथ में एकोमोडेट करना और एक स्मूथ फंक्शनिंग करना ऐसे ईजी नहीं है। इसीलिए हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अडॉप्ट किया। बट क्या हुआ कि जो एक प्रॉब्लम आई, एक कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई कि जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ही वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, when he took his place he said that why a president is bounded by the advice of council of ministers, why he cannot exercise independently। अब उन्होंने ये आर्ग्यू किया कि प्रेसिडेंट अकेले डिसीजन क्यों नहीं ले सकता है, क्यों वो बाउंडेड है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के या प्राइम मिनिस्टर के अंदर। और ये कंट्रोवर्सी आगे बढ़ी, बट in 1976 this controversy has been resolved by the 42nd Amendment Act that was passed and which made the advice given by the Council of Ministers binding on the President of India। मीन्स अब ये चीज़ ऑफिशियली जो है, पहले कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रॉपरली मेंशन नहीं था, बट 42 जो अमेंडमेंट हुआ, जो चेंज हुआ कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें ये प्रॉपरली मेंशन हो गया कि जो प्रेसिडेंट जो है वो बाउंडेड है बाय द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। सो योर चैप्टर एंड्स हियर। Please read this chapter properly, thoroughly, and learn all the new terms along with their meanings. You can get your notes through School Mitra app. Please download them all and complete your work. And also take care of yourself and your loved ones. Thank you.